Hello everyone. In this video we are going to discuss the paper of CA Foundation July 2021 attempt. So if you have given this particular paper, you know that paper is easy, and if you are a student who are going to give the paper in November or you are going to give in May 2022, maybe you like this video and it will be helpful for you because we are going to discuss this paper in this video. So starting with, all you know that answer question number 1 is always compulsory, and from out of 4 you have to attempt only, out of 5 you have to attempt only 4 questions. And the important thing is that all the working notes should form part of your answer. So that is the most important thing which will be useful in this particular paper. When and where, that I will discuss afterwards. First, the question number 1 is of 20 marks, and you know that the question number 1 is always, we say it is true or false. So we are going to start with true or false. First thing, goods sold on approval or written basis are not recorded at credit sales initially when they are sent out. So when they are saying that goods are sent on sale or approval basis and it is on credit, it should not be recorded at credit sales initially. So we know that it is false, because whenever the goods are sent on sale or return basis, whether it is accepted or not, उन्होंने अपने पास रखा है कि वो अपने को वापस देंगे, वो बात का चीज है. But first we are going to record that as a credit sales, so it is false. Second, a company is not allowed to issue shares at a discount to the public in general. So definitely it is true that company is not allowed to issue the shares at discount. They can allowed at par, they are allowed to issue at a premium, but they cannot issue to general public at a discount. हाँ, but अगर sweat equity shares है तो they can issue, but that is to the employee at a discount, but general public ko it is not at all allowed. General public it is not at all allowed. Third, warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. False. क्यों? बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स को गोडाउन तक लेके आने का खर्चा जो भी रहता है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री. कहां तक? गोडाउन तक लेके आने का खर्चा, मतलब गुड्स रेडी हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, अभी तुम लोग उसको स्टोरेज तक लेके आ रहे हो, उधर तक का खर्चा सिर्फ इन्वेंट्री के लिए अलाउड है. दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. दिस इज द वेयरहाउस रेंट, दिस इज द स्टोरेज रेंट, दैट इज नॉट अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 that you have already learned in inventory valuation chapter as well as in the consignment chapter. Next, a person holding preference shares of a company cannot hold equity shares of the same company. कैसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो मैं इक्विटी शेयर्स नहीं रख सकता. डेफिनेटली फॉल्स. वी कैन हैव बोथ द टाइप ऑफ शेयर्स, वी कैन होल्ड बोथ द टाइप ऑफ शेयर्स. फिफ्थ, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. हमने पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सीखा है. आपको मालूम है कि अगर कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस एंड होता है. पार्टनरशिप डीड जो है वो खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एंड पे आ जाता है, बट बिजनेस एंड पे नहीं आता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Cash book is a subsidiary book as well as a principal book. Absolutely true. Cash book is that type of subsidiary book जो सर्व करता है पर्पस जर्नल का as well as ledger का. It serves the purpose of journal as well as ledger. So I can say that कि ये जो मेरा subsidiary books है, it is a subsidiary books as well as principal book, primary book as well as secondary book. So I can say that it is absolutely true. After that, next, discuss the consideration in distinguish between capital and revenue expenditure. ICAI का one of the favorite question है. whenever they are distinguish, सबसे पहला ऑप्शन उनके पास यही दिखता है, that is capital and revenue expenditure. अपने पास थियरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. when we are saying that capital expenditure means that type of expenditure which gives the benefit for more than one accounting year, या फिर मैं बोल सकता हूँ which increase the capacity or efficiency of the particular machines. So I can say it is capital expenditure. Revenue expenditure gives the benefit only in current year, which is useful for the day-to-day routine business expenditure,
वो सब रेवेन्यू है और हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो वी कैन बाइफरकेट इजीली कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बिकॉज डायरेक्ट आंसर अपने टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. फिर उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन 4 मार्क का किसके ऊपर पूछा था? डेप्रिसिएशन के ऊपर. 4 मार्क का किसके ऊपर पूछा था ये क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन के ऊपर. तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के ऊपर पूछा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था. जनरली ये सीपीटी में पूछते थे वो लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां पर उनको फाइंड आउट करना होता था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. बट 4 मार्क के लिए उन्होंने सीए फाउंडेशन में डाला. कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं क्या क्या बोला है उन्होंने. द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 is how much? 28,54,000. It means the balance which is available on 1st April 2020 is 28,54,000. Out of this, मतलब ये 28,54,000 के अंदर 2,16,000 का एक एसेट्स था जो हम लोगों ने क्या किया? बेच दिया. On which date? 1st July 2020 for 82,000. 2,16,000 का assets we have sold at 82,000 but on which date? 1st July. It means मैं बोल सकता हूं कि वो जो 2,16,000 का मशीन था अप्रैल, मई, जून, I have used for 3 months. याद रखना कितना महीना? 3 months. On the same date a new plant was purchased. On the same date का मतलब क्या हो गया? 1st July 2020. On 1st July 2020 we have purchased what? New plant. कितने का? 4,58,000 and spent 22,000 on its erection. तो हम लोग बोलते थे any expenditure incurred before the assets is ready for use is to be added to the cost of the assets. तो मेरा assets का cost सिर्फ 4,58,000 नहीं है, it is 4,58,000 plus 22,000. So 458 plus 22 I can say it is 4,70,000. टोटल खर्चा कितना है? 4,70,000. On 1st November 2020 मतलब और एक मशीन परचेज किया. न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 5,60,000 मतलब एक 1st अप्रैल 2020 का हमारे पास पड़ा था. उसके बाद हम लोग बोलते हैं 1st जुलाई में परचेज किया, 1st नवंबर में परचेज किया. हम लोग को क्या पूछा है? डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अंडर विच मेथड? Diminishing balance method. Calculate the depreciation for the year ended 31st March 2021. So we have to find out only depreciation. हमको कैलकुलेट करके देने क्या भाई? पूरे साल का डेप्री इतना. तो सबसे पहले ध्यान से देखो 28,54,000 का मेरा मशीन था. 28,54,000 का मशीन था जिसमें से कुछ मशीन मतलब 2,16,000 बुक वैल्यू वाला मशीन मैंने सेल किया. So I can say that मशीन कितने का था? 28,54,000 का, जिसमें से 2,16,000 वाला मशीन मैंने क्या कर दिया? सेल. तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 26,38,000. मशीन इज सोल्ड ऑन विच डेट? 1st जुलाई. 1st अप्रैल को उसका वैल्यू कितना था? 2,16,000. हम लोगों ने उसको सेल कब किया? 1st जुलाई. सो आई कैन से आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 3 months. बट ये जो बचा हुआ मशीन था 26,38,000 का, दैट मशीन आई हैव यूज्ड फॉर एंटायर 12 months. तो भाई उसके ऊपर जो भी डेप्री चार्ज करने का है वो कितने महीने का करने का है हमको? एंटायर 12 months. अंडरस्टूड? तो अब डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 15%. आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन. मुझे ये जरूरत नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ सेल के टाइम पे. आई हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन. तो ये 2,16,000 पे 3 महीने का कितना आएगा? 8,100. ये 26,38,000 पे 12 महीने का कितना? 15%. 397,500. क्वेश्चन में आगे हमको कुछ बोला था, सर 1st जुलाई को हमने एक नया मशीन परचेज किया. 1st जुलाई को हमने क्या किया? नया मशीन परचेज किया जिसका वैल्यू कितना था? 4,80,000. जिसका वैल्यू कितना था? 4,80,000. ये 4,80,000 वाला जो था वो कितना महीना? जुलाई से लेके 31st मार्च. इट मींस आई हैव यूज्ड फॉर 9 months. आई हैव यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स?
9 months. So I can say that ये 4,80,000 पे 15% for 9/12 डेप्री कितना आएगा 54,000. एंड आफ्टर दैट 1 नवंबर को हमने एक नया मशीन परचेज किया था. कितने का 5,60,000. वी हैव परचेज 5,60,000. जैसे ही 5,60,000 परचेज किया तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च वी हैव टू चार्ज डेप्री फॉर 5 months. सो 5,60,000 पे 5 months का डेप्री, तो 560 पे 15% फॉर 5/12 टोटल अमाउंट कितना होगा 35,000. अब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों मशीन का डेप्री को ऐड करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आ जाएगा यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन. सो अगर आपका आंसर 4,92,800 है तो आई कैन से दैट कि तुम्हारा डेप्रीसिएशन अमाउंट करेक्ट है. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1C फॉर 5 marks. तो अगर तुम देखोगे फॉर 4 marks, अगर तुम देखोगे तो पहला 20 marks का पेपर बहुत ही सिंपल था. आगे बढ़ते. अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते तो मेरा नजर जाता है क्वेश्चन नंबर 2A पे. और जब मैं यहां पर पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2A, मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर. मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसने ट्रांसफर कर दिया है. मैं बोल सकता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया. नेक्स्ट ईयर ही हैज अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड who have examined the old books and find out the following mistake. मतलब मैं बोल सकता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया है. उसके बाद जब भी हम लोगों को रेक्टिफिकेशन करने का है सो वी हैव टू ओपन वन अकाउंट दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड. नेक्स्ट ईयर में अपॉइंट किया चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसने बोला भाई ये सब गलती है अपने में, सो वी हैव टू रेक्टिफाई. जैसे रेक्टिफाई करने को बोलेंगे तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट. अब P&L एडजस्टमेंट भी बनेगा, सस्पेंस भी बनेगा और तो और हम लोगों को एंट्री भी पास करना पड़ेगा. बट जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2A, जैसे ही पहला एंट्री पढ़ता हूं या जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं ऊपर का चीज मेरे को याद आता है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन, नाम बदला है बस, नाम बदला है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने दे के रखा था. तो अगर आपने मॉड्यूल एकदम प्यार से किया, दिलो जान से किया है तो भाई ये 10 मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता. सेम टू सेम. विश्वास नहीं हो रहा? देखो जरा ध्यान से. Mr. Roy was unable to agree the trial balance and wrote of the difference to the profit and loss account next year. He had appointed chartered accountant who examined the old books and found out the following mistakes. Purchase of scooter was debited to conveyance account. Purchase of scooter debited to conveyance account. Purchase of scooter was debited to conveyance account of 30,000. Mr. Ratan charged depreciation 10% on scooter. आपको लगता है ये इंस्टीट्यूट के बुक में नहीं है? ये है, सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है. Purchase account was overcast by 1 lakh. Purchase account was overcast by 10,000. Check. Same. Credit purchase of goods of Mr. P 2,000 entered as a sale. Credit purchase of goods Mr. X 20,000 was entered as a sale. So मैं यहां पर ये क्वेश्चन को डिटेल करके आपका मेरा टाइम दोनों का वेस्ट नहीं करेगा, मगर मैं तुमको ये चीज बोल सकता है कि इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज ऐसे का ऐसा ही है. सिर्फ क्वेश्चन पेपर में 1 0 बढ़ा के दिया हुआ है, नाम थोड़ा सा चेंज किया. नाम में भी आपको पता है कि कैसे. अब यहां पर जब मैं बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चन तुमको दिया है तुम देख सकते हो पूरा 10 मार्क, तो जो बच्चे ने अच्छे से किया रहेगा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ये 10 मार्क उनका है. इसमें कोई भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है. अगर होता तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता. बट एक चीज याद रखो, जब मैं बोलता हूं यहां पर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने लास्ट ईयर में क्लोज कर दिया था, तो जो भी नॉमिनल अकाउंट आएगा यहां पर
वो नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, मतलब गलती से कन्वेंस में डेबिट कर दिया था। अब गलती से डेबिट कर दिया था तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, स्कूटर अकाउंट को डेबिट करेगा, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। बट कन्वेंस नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखेगा उसके यहाँ पे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। साथ में जैसे ही ये एंट्री पास करेगा मैं 30,000 का, तो मैं एक और एंट्री पास करेगा डेप्री चार्ज करने के लिए 10% ऑन दैट 30,000, 3,000 रुपीज। तो मैं एक एंट्री और पास करेगा, दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर 3,000। ये दोनों को कंबाइन करके नेट 27,000 का एंट्री भी आप पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप सो यू गेट दिस, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कोई नया क्वेश्चन रहेगा तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करेगा। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज मॉड्यूल का है जो आपके क्लासेस में आपको कराया हुआ रहेगा और आपने भी अच्छे से इसको पढ़ाई किया रहेगा। अब ये 10 मार्क आपके सिक्योर थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, नया है, ये टेक्स्ट बुक में आपको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब में क्या बोलेगा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज हाउ मच, 3,500। किसी को नहीं समझ में आया तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,500, जैसा मैंने यहां पे लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,500। फिर क्या दिया, अ चेक ऑफ 2,500 डिपॉजिटेड ऑन 15th March बट द सेम वाज रिटर्न बाय बैंक ऑन 24th March फॉर विच नो एंट्री वाज पास्ड। तो मैं क्या बोलता हूं, 2,500 का एंट्री सिर्फ किस में हुआ है, कैश बुक में हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ है क्योंकि वो रिटर्न हो गया। सो एंट्री इज ओनली रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक एंड कैश बुक दैट इज आल्सो डिपॉजिट, मतलब रिसिप्ट साइड पे हुआ है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द एंट्री। तो मैं यहां पर जो फॉलो करता हूं, आई ऑलवेज फॉलो दिस प्लस माइनस का साइन। तो यहां पर मैं क्या बोलेगा, रिसिप्ट साइड पे तुम्हारा साइन क्या आ रहा है, 2,500 माइनस इसके लिए मैं क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो 2,500 रुपीज हम क्या करेंगे, माइनस। फिर ड्यूरिंग द मार्च 2 बिल्स अमाउंटिंग टू 2,500 and 500 कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब ये 2,500 रुपया और 500 रुपया दोनों मिला के कितना, 300 रुपया किसने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने। मतलब बैंक वाला जो भी रिकॉर्ड करेगा वो कहां पर करेगा, डिपॉजिट साइड पे 2,500 प्लस 500, उसके ऊपर का साइन क्या है, प्लस। तो मैं इसको क्या कर देगा, प्लस। अब ये प्लस माइनस वाला साइन कैसे आया, तो अगर आपको याद रहेगा तो हम क्या बोलते थे, जो भी बैलेंस दिया है वहां पर हम साइन कौन सा रखते थे, माइनस का। जो भी बैलेंस दिया है उसका साइन क्या रखते थे, माइनस। बाजू में सब जगह पे ऑल्टरनेटिव साइन, तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी प्लस, और उसके बाजू में प्लस के बाजू में क्या आएगा, माइनस। आगे देखते हैं कुछ और डिफिकल्ट इसके अंदर है क्या। अ बिल फॉर 5,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी। मिस्टर बालाजी के पास से 5,000 रुपए का बिल जो था वो लेने का था, जो हमने प्रीवियसली क्या कर दिया था, डिस्काउंट करवा दिया था 4,800 में। ठीक है, बिल 5,000 का था, हमने बिल डिस्काउंट कितने में करवाया, 4,800 में। नाउ टेल मी वन थिंग, उन्होंने आगे क्या दिया है, was dishonored। बिल क्या हो गया भाई, बिल हो गया डिसऑनर। व्हेन आई एम सेइंग दैट बिल इज डिसऑनर, मतलब डेफिनेटली बैंक वाला जो भी है, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसा कट कर देगा, और बैंक ने वही किया। देखो, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक। बैंक ने क्या कर दिया, अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, बैंक ने अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक ने अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। अब जैसे ही बैंक ने अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब मेरे पासबुक में विड्रॉवल साइड पे एंट्री आ गया रहेगा, और बैंक वाला मेरे पास से 4,800 नहीं लेगा, बैंक वाला मेरे पास से लेगा तो पूरा 5,000 लेगा, सॉरी हाँ 5,000 लेगा। कितना लेगा, पूरा 5,000। क्या बैंक वाला मेरे पास से 4,800 लेगा, नहीं, बैंक वाला कितना लेगा मेरे पास से 5,000। कितना लेगा मेरे पास से 5,000। क्यों, बिकॉज वो डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा बिल 5,000 का था, आई हैव टू टेक 5,000, तो
तो बैंक ने कितने का एंट्री पास कर दिया रहेगा 5000 का, तो बैंक ने कितने का एंट्री पास कर दिया 5000 का, तो बैंक हैज रिकॉर्डेड हाउ मच 5000 का एंट्री, 5000 का कौन सी साइड पे विड्रॉवल साइड पे, उसके ऊपर का साइन क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा -5000, क्या लिखा देखो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक लास्ट चेक ऑफ 1500 was debited twice in the कैश बुक, ये एरर है भाई, ट्वाइस इन द कैश बुक मतलब एक बार एंट्री कैश बुक में आना चाहिए, एक बार एंट्री पासबुक में आना चाहिए, बट कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया कौन सी साइड के कैश बुक में, रिसिप्ट साइड पे 1500 रुपया एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, तो 1500 रुपया जब एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया तो हम लोग क्या बोलेंगे रिसिप्ट साइड का साइन क्या है माइनस, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया यहां पर 1500 को माइनस किया। अब अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो इंस्टीट्यूट बोलेगा भाई क्वेश्चन सिंपल पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक रखना चाहिए, 3500 प्लस 3000 टोटल कितना होता है 6500, ऐड का आइटम 6500 है, लेस का आइटम कितना है 9000, मतलब मैं क्या बोलेगा अगर ऐड का आइटम ज्यादा कम है लेस का आइटम ज्यादा है, सो मैं बोल सकता हूं जो ऊपर हमको ओवरड्राफ्ट दिया था नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल बैलेंस, सो पहले क्या था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर क्या था पासबुक, बट नाउ इट इज नॉट ओवरड्राफ्ट, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल बैलेंस एंड दैट इज bank balance as per cash book, that is how much 2500. So this is also 5 marks comparatively simple question, तो 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन 5 मार्क का BRS, और उसके बाद after that from the following information calculate the historical cost of closing inventory using what adjusted selling price, using adjusted selling price method। adjusted selling price method में अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्या दिया रहता था परचेस दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक देखो लास्ट में क्या दिया एट सेलिंग प्राइस, तो हम लोग वहां पर सबसे पहले एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या फाइंड आउट करते थे, वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सामने चाहिए सेल्स, बट यहां पर वैसा अवेलेबल होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर परचेस किया ना, कितने का परचेस किया 5 लाख का, मैं बोला गुड, मतलब ये मेरा पूरे का पूरा कॉस्ट, तो कोई बोलेगा सर पूरा गुड्स तो सेल नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, मैं बोलता हूं अभी के लिए पूरा 5 लाख रुपया मैं क्या पकड़ रहा हूं कॉस्ट, फिर सेल्स कितना है 7,50,000 रुपीज, और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पे अवेलेबल है वो कितना है 1 लाख, मतलब अगर मैं पूरे का पूरा गुड सेल करता तो 7.5 लाख प्लस 1 लाख 8.5 लाख रुपया टोटल मेरा सेल्स होता, कितना सेल्स होता टोटल 8.5 लाख रुपया, सो माय cost is 5 lakh and if I am going to sell the entire goods it will be at 8,50,000, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा 5 लाख का गुड्स बेच दिया तो मुझे यहां पर 3.5 लाख का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 3.5 लाख का प्रॉफिट, सो वो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8,50,000 का टोटल सेल्स पे से मुझे क्या मिलेगा जीपी, sale price of all the goods 7,50,000 plus 1 lakh, that is 8,50,000, purchase cost is how much 5 lakh, so मेरा total profit on the total goods is 3,50,000, so profit upon sales into 100, ये मेरा क्या आ गया profit on sales, My closing stock is of how much 1 lakh, इसमें से अगर मैं प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालेगा तो वो 1 लाख पे मैं 41% डालेगा तो 41,176, so my cost is 58,824 rupees,
जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन, इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो 20 मार्क का था, 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन, 5 मार्क का BRS और 5 मार्क का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इट इज सो सिंपल दैट यू कैन इजीली स्कोर 20 आउट ऑफ 20। उसमें से 10 मार्क तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का था, तो ये तो आपको मिलना ही चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम लोग बात करते हैं आगे, सर आगे क्या दिया है इन्होंने, आगे इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दैट रमेश लेंट 1,50,000 टू दीपक ऑन 1st Jan 2016 at the rate of 12% per annum. The loan is repayable as under 10,000 on 1st Jan 2017, 20,000 on 1st Jan 2018, 1st June 2019, 20 and 21, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अलग अलग 5 इंस्टॉलमेंट दिए। सेम तो नहीं बोल सकता, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द, दे हैव गिवन इन द मॉड्यूल ऑल्सो। एक या दो क्वेश्चन ही है जिसमें लोन पे इंटरेस्ट निकालने का, अगर तुम देखोगे उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल है, दैट सॉल्व्ड एग्जांपल इज सिमिलर, उसमें 1,500, 2,500, 3,500 दिया है, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द मॉड्यूल। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या बोलेगा यहाँ पर, पहले निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। 1/1/2017 से पहला इंस्टॉलमेंट चालू होएगा, फिर 18, 19, 20, 21, अमाउंट 10, 20, 30, 40, 50, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,50,000। मैंने बेस डेट पकड़ा है यहाँ पर 1st Jan 2017, अगर आपको चाहिए तो आप 1st Jan 2016 भी बेस डेट पकड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई हैव चूजन द बेस डेट इज 1/1/2017। तो नंबर ऑफ ईयर्स मेरा क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, प्रोडक्ट मेरा आ गया 4 लाख। एवरेज ड्यू डेट कैसे मिलता है, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, सो 1/1/2017 प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, सो 1st Jan 2017 से 2.667 ईयर। अब 2 इयर्स तो पहले ले लो, मतलब 1st Jan 2017 प्लस 2 इयर्स मतलब 1st Jan 2019 तो आ ही जाएगा, प्लस 0.667 ईयर। सर ये 0.667 ईयर्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1st Jan 2019 प्लस 0.667 इंटू 12 करेंगे तो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना मंथ आया 8 मंथ, 8 मंथ आया, तो 1st Jan प्लस 8 मंथ, इट मीन्स आई कैन से माई ड्यू डेट इज 1st September। You see this solution, that is what 1st Jan 2019 plus 8 month, तो 1st September 2019 is what is my average due date, मतलब ये दिन पे मेरा पेमेंट होना चाहिए। बट क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि सर you are required to determine average due date for settling all the above installment by single payment and compute interest। ठीक है, मतलब मैं 1st September 2019 को पेमेंट करता हूं तो कितना इंटरेस्ट, तो भाई लोन कब लिया था 1st Jan 2016। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहा हूं, मैं बोलता हूं 1st Jan 2017 के बाद 2.667 ईयर्स था, तो 1st Jan 2016 के बाद मैं बोल सकता हूं यहां पर इट इज 3.667 ईयर्स, 2016, 17, 18 and 1st September 2019, so I can say it is 1st Jan 2016 से 3.667 ईयर्स। मेरा काम बहुत सिंपल हो जाएगा ना, मैं क्या बोलता हूं 1,50,000 पे 12% for 3.667 years, so my interest is 66,006 rupees। अगर तुम चाहो इसको मंथ में कन्वर्ट करो, मंथ में कन्वर्ट करने के बाद निकालो, आई डोंट माइंड। हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, हमने क्या बोला 1st Jan 2016 से करके 1st September 2019, मतलब कितना हुआ 3.667 ईयर्स, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम लोग ने ले लिया आंसर।
So this is what question number 3A for 5 marks. ABC Limited supply goods on sale or return basis to customer. Goods are to be returned 15 days from the date of dispatch. Following is treated as a sales. The books of ABC Limited are closed on 31st March 2021. The particular of same as under. तो वापस से ऐसा कुछ हम टेबल देखते हैं तो हमको ये लगता है कि सर हमने भी ये कहीं पर क्वेश्चन किया है. तो मैं तुमको बता दूं, इंस्टीट्यूट जब भी पूछता है, अगर मॉड्यूल में से पूछा है तो ये मॉड्यूल का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे के रखा है कुछ पेज नंबर 6.46 पे. तुम ढूंढोगे तुमको मिल जाएगा. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट में थोड़ा सा फर्क है. दूसरा चीज, वहां पर ईयर एंड 31 दिसंबर था, यहां पर 31 मार्च को किया है. कोई ज्यादा फर्क नहीं है. गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे किया हुआ है. तो आपको मालूम है व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और उन्होंने क्या बोला है हमको बनाने का, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स. तो उसका फॉर्मेट कुछ हम इस प्रकार बनाते हैं. डेट, पार्टी टू होम द गुड्स इज सेंट, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, कितना गुड्स सेल हुआ, कितना गुड्स रिटर्न किया. सो यहां पर हमने ट्रांसफर किया PQR. 25,000 का क्या किया था, गुड्स. हमने क्या किया है, सेल. नो इंफॉर्मेशन टिल 31 मार्च 2021. जरा क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज. मतलब 15 दिन में जवाब चाहिए. अगर 15 दिन में उसने बोल दिया यस, एक्सेप्ट हो गया. 15 दिन तक उसने जवाब नहीं दिया यस और नो, तो भी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया. तो 15 डेज. रिमेंबर 10 मार्च को 31 मार्च तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया. सर अगर 31 मार्च तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया तो मैंने 10 मार्च से क्या पकड़ा, 15 दिन, मतलब 25 मार्च. 25 मार्च तक जवाब आ जाना चाहिए था, नहीं आया. मैंने क्या बोल दिया, इट इज सेल. मैं क्यों रुकेगा. 12 मार्च को, तो 12 मार्च को हमने गुड्स बेचा था, उसने 16 मार्च को रिटर्न कर दिया. बोला 15 दिन तक रुकने का नहीं, आपका गुड्स अच्छा है ही नहीं. उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. मैंने रिटर्न वाले में डाल दिया. मैंने बोला चलो ये गुड्स मेरे पास रिटर्न आ गया. फिर 15 मार्च को उसने क्या बोला, गुड्स वर्थ 8,000 रिटर्न. 40,000 का गुड्स दिया था, 8,000 का उसने 20 मार्च को रिटर्न कर दिया. बाकी का कुछ बोला है नहीं. सर बाकी का 20 मार्च को उसने अगर 8,000 ही रिटर्न किया, बाकी का 15 दिन हो गया, उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं क्या बोलेगा, 40,000 में से 8,000 रिटर्न, मतलब बाकी का 32,000 इज सोल्ड. फिर उसके बाद डीएफ का बात करते हैं. डीएफ में क्या बोला है, गुड्स रिटर्न, सॉरी 10,000 का हमने क्या किया है, गुड्स उसको सेल किया. उसने क्या बोला 24 मार्च को, सर रिटेंड किया, मतलब क्या हो गया, सेल. फिर उसके बाद 25 मार्च को हमने क्या बोला, गुड्स दिया, बट उसने 28 मार्च को ही फोन करके बोल दिया. देखो 25 मार्च का 15 दिन गिनेंगे ना तो वो 10 अप्रैल के आसपास जाएगा, मगर 28 को फोन करके बोल दिया सर गुड्स अच्छा है, मैं रखने वाला हूं, आप टेंशन मत लो. तो हमने उसको 28 मार्च को ही क्या अज्यूम कर दिया, सेल्स. 30th मार्च को मैंने क्या किया था, सेल किया था. 30th मार्च को मैंने गुड सेल किया था, कितने का, 35,000 का. 31 मार्च तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया. एक दिन में थोड़ी ना कोई बताएगा. मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज सेल्स, नहीं. क्या मैं बोल सकता हूं इट इज रिजेक्टेड, नहीं. मतलब ये मेरा क्या है, बैलेंस. तो इसके लिए देखो मैंने यहां पर एक बैलेंस कॉलम नहीं बनाया हुआ है. मैं बोल सकता हूं कि 35,000 का बैलेंस है. अब जब मैं उसका लेजर अकाउंट बनाएगा तो मैं क्या बोलेगा, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टोटल 1,47,000. उसमें से जो रिटर्न हुआ, कितना रिटर्न हुआ, 23,000, तो वो रिटर्न में लिखा. जितना सेल्स हो गया तो उसको कहां पर लिखा, सेल्स में लिखा. बाकी का जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं उसके लिए क्या लिखा, टू बैलेंस कैरिड डाउन. क्या लिखा, टू बैलेंस कैरिड डाउन. 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सेम टू सेम, इंस्टीट्यूट का, मॉड्यूल का. अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको. और so this is
क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3C कंसाइनमेंट, अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन है मतलब मैं बोल सकता हूं कि मॉड्यूल में तुमको सिमिलर ऐसा नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सर ये डिफिकल्ट है, नहीं, सिर्फ नया है। क्या दिया देखते हैं। Max Chemical Works consigned 700 boxes of medicine to Raja Medical Store at an invoice price of 168. कैलसी लेके बैठना, साथ में करते जाएंगे। 168 which was 20% above the actual price। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, 20% above the actual price, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, it is 1/5 on cost। 1/5 on cost तो मैं बोल सकता हूं 1/6 on sale। अब जैसे ही मैं बोल सकता हूं इसको 1/6 on sales, तो अब मैं क्या बोलेगा, तुम लोग जरा ध्यान से देखो। 1,68,000 डिवाइडेड बाय 700 करो। 1,68,000 divided by 700 boxes। $1,68,000 divided by 700 boxes, तो तुमको क्या मिलेगा पर बॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग it is 240 per box। if I am not wrong it is 240 per box, मतलब invoice price per box is 240, और उन्होंने क्या बोला है 1/5 on cost, तो 1/6 on selling price, और जैसे ही मैं बोलता हूँ 1/6 on selling price तो डिवाइड बाय 6 करेगा तो 40 रुपीज इज लोडिंग। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि पर यूनिट का मुझे क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस। पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना आया 200, पर यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना आया 240, पर यूनिट का लोडिंग कितना आया 40। अभी तक 2 लाइन पड़ा है बट इतना तो निकाल सकते हैं हम लोग। 14,000 इंश्योरेंस एंड फ्रेट दिया है। इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टर पेड 22,000। ठीक है, चलो यहां पर मेरा कुछ गुड्स है ना, क्या हो गया डिस्ट्रॉय ट्रांजिट में। तो मैं क्या बोलेगा कि जितना भी गुड्स मेरा ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुआ इट मींस इट इज अबनॉर्मल लॉस। तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। एंड अबनॉर्मल लॉस जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। और आपको मालूम है एक बॉक्स का कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया, दैट इज हाउ मच 200 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स। So invoice price of the goods sent 168, number of boxes 700, invoice price per box 240, loading is 40, तो cost price is 200। बराबर, ये कैलकुलेशन करके रखा है। ये कैलकुलेशन क्यों करके रखा, हम लोग को बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर मैं क्या बोलता हूं अबनॉर्मल लॉस, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50 बॉक्सेस, एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस 200, मतलब कितना हुआ 10,000। सेकेंड प्रोप्राइटर एक्सपेंसेस या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर हम क्या बोलेंगे 14,000 कंसाइनर ने फ्रेट का दिया था, पूरा 700 बॉक्स पे दिया था, तो हमारा 50 बॉक्स पे कितना 1,000 टोटल अबनॉर्मल लॉस। क्लियर। थोड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट को यहां पर देखें तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर 168 है तो सामने ये इनवॉइस प्राइस पे तो सामने क्या लिखना पड़ेगा लोडिंग, और लोडिंग कितना है 1,68,000 का 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस इज लोडिंग, तो कितना आएगा 28,000। अब नॉर्मल लॉस अभी कैलकुलेट किया कितना आएगा 11,000। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 14,000। ठीक है, आगे consignee took the delivery for the remaining boxes and paid 9,750 for carriage, तो carriage 9,750 consignee का expenses debit। after that consignee sold 500 boxes for 1,60,000, तो 500 boxes for 1,60,000 by consignee, that is Raja Medical Stores।
एंड इनकर्ड 6000 सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा खर्चा है तो डेबिट साइड, and 6% is what? Commission. 6% is what? Commission on gross sales. तो gross sales 1,60,000 पे 6% 9,600, टोटल खर्चा कितना आएगा 25,350। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सिर्फ एक ही बचा है, वो क्या ढूंढने का? कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक के पहले हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि सर उसके पास कितना क्वांटिटी बचा है, तो मैं बोलेगा 700 क्वांटिटी सेंड किया था, जिसमें से 50 जो भी है अब नॉर्मल लॉस चला गया, 650 आया, 650 में से 500 को बेच दिया, मतलब कितना बचा 150 इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो भी है वो कितने पे कैलकुलेट होगा 150 बॉक्सेस पे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इज सेम एज अबनॉर्मल लॉस, या अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सेम एज क्लोजिंग स्टॉक। तो आई कैन से दैट goods sent on consignment 150 into 240, 240 क्यों? बिकॉज अगर तुम्हारा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सो 150 इंटू 240 3,60,000, 3,60,000। प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो 14,000 जो भी खर्चा किया था कितना यूनिट पे किया था 700 यूनिट पे, तो मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक में 150, तो 150 पे कितना 3,000। प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट? कंसाइनी। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया सर? कंसाइनी ने जो खर्चा किया था ना उसमें 9,750 कैरेज का था, सेलिंग एक्सपेंसेस था और कमीशन था, तो कमीशन तो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा नहीं। वी ऑलवेज हैव टू टेक ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, या फिर मैं बोल सकता हूं फिर से गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा। जब मैं बोलता हूं गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा, तो आई कैन से दैट सिर्फ और सिर्फ 9750 विल बी कम इनटू द क्लोजिंग स्टॉक। So when I have said that 9750, but that 9750 is not incurred on 700, 50 बीच में से गायब हो गया था, तो कितना बचा 650। So 9750 is for 650 boxes, तो 150 बॉक्स के लिए कितना 2250। मेरा क्लोजिंग स्टॉक 41,250 आया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख दिया 41,250। आपको अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा तो हम बोलते थे ये बोलते थे कि अगर गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस पे लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे तो सामने तुमको लोडिंग भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लोडिंग। लोडिंग ऑन व्हाट? लोडिंग ऑन दैट क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते थे? स्टॉक रिजर्व। अब एक यूनिट के ऊपर लोडिंग वी हैव कैलकुलेटेड द लोडिंग ऑन 1 यूनिट, एंड दैट लोडिंग इज हाउ मच? 40 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक में कितना है 150 यूनिट, 150 इंटू 40, तो मेरा लोडिंग 6000, एंड फिर जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बचेगा, दैट बैलेंसिंग फिगर दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 26,900. So this is the closing stock of consignment and this is the profit of consignment. I hope this question is also simple that you like. कि जितना तुमने सोचा था उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसाइनमेंट का नहीं है, सो ज़्यादा टेंशन वाला बात हमारा यहाँ पर नहीं आता है, तो ज़्यादा टेंशन वाला बात यहाँ पर नहीं आएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A पे। अभी क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4A इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। That is, Karuna decided to start a business of fashion garment under the name of Mrs.
designer wear on 1st April 2020. She had a saving about 10 lakh. She has invested 3 lakh out of her saving and borrowed equal amount from the bank. She purchased commercial space for 5 lakh and further spent 1000 on its renovation to make it ready for business. फिर उसके बाद लोन और इंटरेस्ट का रीपेमेंट का शेड्यूल दिया है. फिर उसके बाद दिया है कि एडिशनल कैपिटल. सर ये सब चीज है किसके लिए? नीचे टोटल सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, मिसलेनियस. सर व्हाई दिस ऑल इज गिवन? आई डोंट नो. वी हैव टू सी द क्वेश्चन. क्या पूछा उन्होंने? प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. मतलब ये ट्रायल बैलेंस है नहीं. सो दिस इज लिटिल बिट अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉर्मल फाइनल अकाउंट क्वेश्चन जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता था. यहां पर वैसा चीज नहीं है. हियर यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच दे हैव गिवन. सो फाइनल अकाउंट के लिए ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तो हमको बनाना ही पड़ेगा. बट यहां पर उन्होंने बोला ना वर्किंग नोट वेन एवर इट इज नेसेसरी. सो हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन वर्किंग नोट दैट इज कॉल्ड द बैंक अकाउंट. हम लोग यहां पर जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस रेडी नहीं है. अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस रेडी रहता तो मैं हर ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट देता और जो एडजस्टमेंट है वो सबका 2 इफेक्ट देता. Here we don't have the ready-made trial balance. Here we just have the information. From that information we have to prepare final account. So definitely from that information or adjustment we have to give 2 effect. So understood how we are going to give that. जैसे कि स्टार्टिंग में देखो ये एक टेबल जो दे के रखा है. इफ यू गो थ्रू दिस टेबल, यहाँ पर टोटल सेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, कार्टेज है, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, टोटल परचेज, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेएबल, अदर इंफॉर्मेशन सब दिया है. कहीं पर भी कैपिटल दिया है नहीं. क्यों? बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि करुणा जो है उसने अभी जस्ट बिजनेस चालू किया है और वो कौन से नाम से? मेजर डिजाइनर वेयर से. तो मैं क्या लिखेगा? इन द बुक्स ऑफ मेजर्स डिजाइनर वेयर. 1 अप्रैल को उसके पास 10 लाख रुपया था, पर्सनल प्रॉपर्टी था 10 लाख रुपया. क्या मेजर्स डिजाइनर वेयर, क्या कंपनी को, क्या प्रोप्राइटरशिप कंपनी को, फर्म को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं. बट उसमें से उसने कितना डाला? 3 लाख रुपया. तो यहां पर ये क्या है? इंफॉर्मेशन के सर वो कैपिटल 3 लाख लेके आई थी. तो वो कैपिटल जब 3 लाख लेके आया तो 3 लाख रुपया जब लेके आया तो साथ में कैश में भी डाला रहेगा ना. सो यहां पर क्या करेंगे? हर एक चीज का हम 2 इंफॉर्मेशन, 2 रिपोर्ट देंगे. तो हम क्या बनाएंगे? पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट लाइक दिस. फिर हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट लाइक दिस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट दैट इज व्हाट? बैंक. कहीं पर बोला नहीं है बट ये बनाना पड़ेगा. और हर एक इंफॉर्मेशन का हम क्या देंगे? 2 इफेक्ट. जैसे कि वो कैपिटल लेके आया 3 लाख. 3 लाख जैसे ही कैपिटल लेके आया तो देखो मैंने पहला इफेक्ट यहां पर दिया कैपिटल का. दूसरा, ये कैपिटल लेके आया तो किस में लेके आ रहेगा? कैश में या बैंक में? तो कहां पर डाला रहेगा हमने उसको? बैंक में. एक लाइन जो है वो क्वेश्चन में देखो यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस में हुआ है? चेक में. और जो भी रिसिप्ट हुआ है वो सब हमने क्या किया है? बैंक में डिपॉजिट. मतलब कैश अकाउंट नाम का चीज नहीं बनाने का, सिर्फ बैंक अकाउंट बनाने का है. कैश अकाउंट नाम का चीज बनाने का है नहीं, सिर्फ क्या बनाना है हमको? बैंक. फिर उसके बाद उन्होंने क्या दे के रखा है? अभी हम लोग सबका 2 इफेक्ट फटाफट देख के जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आई विल डिस्कस, अदरवाइज वो फास्ट में चला जाएगा. 3 लाख रुपीज उसने क्या करके रखा हुआ है यहां पर? इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री, एक कैश में गया, एक कैपिटल में गया. दूसरा सिमिलर 3 लाख का लोन लिया. लोन लिया तो भाई बैंक बैलेंस तो 3 लाख से बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब ये लोन है तो भाई ये जो लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज. हाँ, बैंक लोन कुछ रिपे भी किया था ना, इसके लिए यहां पर मैंने इनर कॉलम में लिख के रखा है. फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला है.
ये जो 6 लाख रुपए उसने लिया था, वो 6 लाख से उसने क्या किया, कमर्शियल मतलब एक बिल्डिंग परचेज किया और 1 लाख रुपए उस पर क्या किया, उसने खर्चा कर दिया। मतलब टोटल 6 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा उसने। 6 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा तो उसके लिए पेमेंट भी किया रहेगा। पेमेंट किस में से किया रहेगा, बैंक से। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बिल्डिंग कहां पर दिखेगा सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। और पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड पे। कमर्शियल स्पेस लिखा है मैंने, जो क्या है तुम्हारा बिल्डिंग है, तुम कमर्शियल स्पेस लिखो, बिल्डिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज हाउ मच, 6 लाख। एंड उसके बाद क्या दिया, लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड। जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या दिया, लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड। तो 15,000 का एक प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल। 15,000 इंटू 4 मतलब टोटल 60,000 का क्या किया, लोन रीपे किया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, लोन जो रीपे किया उसमें लिखेगा ना 60,000 माइनस हो गया, मतलब टोटल पेएबल 2,40,000। ये 60,000 का जो लोन रीपे किया तो मैं यहां पर क्या लिखेगा, 60,000 का तो लोन रीपे किया, बट सर लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो दिया है। तो मैं बोलता हूं यस इंटरेस्ट भी पे किया, बट क्या ये इंटरेस्ट लोन में से माइनस होता है, नहीं। ये इंटरेस्ट कहां पर दिखता है, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, एग्जैक्टली पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो इसका टोटल करके मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड। And second effect of that I am going to write in PNL। हर एक चीज का, हर एक इंफॉर्मेशन का कितना इफेक्ट देने का, 2 इफेक्ट। उसका रीजन ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, मतलब जर्नल लेजर वो सबका 2 इफेक्ट करके तुमको बनाने का है फाइनल अकाउंट। सो मस्त क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके जाने का, क्वेश्चन सिंपल है, आराम से करते जाओ, आराम से टैली होगा। फिर आगे क्या दिया है उन्होंने, In view of further capital requirement, she transferred 2 lakh from her saving account to bank। मतलब एडिशनल कैपिटल, सर ये तो सिंपल है, एडिशनल कैपिटल मतलब यहां पर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और दूसरा सर एडिशनल कैपिटल आया मतलब बैंक में भी पैसा बढ़ जाएगा। बोला यस। फिर आगे क्या दिया है उन्होंने, फर्नीचर ऑफ she paid security deposit for 7,000 for telephone connection। टेलीफोन कनेक्शन का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो पैसा वापस मिलेगा उसको फ्यूचर में। मतलब मैं उसको क्या बोलेगा 7,000 तो यहां पर लिखा, और दूसरा इट इज माई एसेट्स बिकॉज फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना मेरे को, इट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। आगे फर्नीचर ऑफ 10,000 वॉज परचेज। चलो 10,000 का फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में क्या करते गए, पेमेंट। ये सब तो हो गया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट। सिर्फ जरा यहां पर फोकस करना। अभी टोटल सेल्स 20 लाख का दिया है। अब कहीं पर भी बोला है क्या ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, नहीं। तो तुम बोलोगे सर अगर कुछ भी नहीं बोला तो क्रेडिट सेल्स अज्यूम करेंगे। मैं बोलेगा ये क्वेश्चन के लिए मेरा अजम्पशन ये रहेगा कि जो भी मुझको टोटल सेल्स दिया है और टोटल परचेज दिया है दैट इज कैश परचेज एंड कैश सेल्स। क्यों, बिकॉज अगर ये क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स होता तो दे हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्या पूरा क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और डेटर्स का कहीं पर भी तुमको इंफॉर्मेशन मिला क्या, कहीं पर भी क्रेडिटर्स और डेटर्स का इंफॉर्मेशन तुमको मिला नहीं। इट मींस ये जो भी है सब ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है। सब ट्रांजैक्शन कहां पर दिखेगा, कैश में। तो सबसे पहले टोटल सेल्स 20 लाख का, 20 लाख का क्या किया, सेल्स। तो मेरा सेल्स अकाउंट 20 लाख और दूसरा परचेज 17 लाख।
अब जो सेल्स किया तो आई हैव रिसीव्ड अ कैश रिसीव्ड किया रहेगा तो बैंक अकाउंट में आई हैव टू राइट डेबिट साइड 20,000 एंड फॉर परचेज 17 लाख आई हैव पेड। अंडरस्टूड। दो इफेक्ट, हर एक चीज का क्या देना है, दो इफेक्ट देना है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, क्या है ये, पेड मतलब जो एक्चुअली में तुमने कैश में दिया है। और यहां पर देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल। सो अगर कोई मुझको पूछेगा सर व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आई कैन टेल देम टोटल एक्सपेंसेस इज 40 plus 20 that is 60,000. Out of that 40,000 is paid in cash. If it is paid तो वो कहां पर आएगा सर, वो आ जाएगा बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड पे। सर 20,000 इज स्टिल पेबल, पेबल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। अंडरस्टूड, क्लियर। बाकी का जितना भी है सब सिंपल है। ये जो भी तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड है, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस, ये सब क्या है, पीएनएल का आइटम। ये सब का इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे पहला और दूसरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्यों, बिकॉज ये सब क्या है, खर्चे। और ये सब पे किया है तो इसका इफेक्ट कहां पर आएगा, सो सब पेमेंट साइड। सो ये टेबल भी हो गया। She withdraw 5,000 by check each month for personal expenses by 12,000 into 5, sorry 5,000 into 12, 60,000 रुपीज का तुम्हारा क्या आएगा, ड्रॉइंग। एंड दूसरा इफेक्ट लेस ड्रॉइंग्स। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यू नो हाउ टू चार्ट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और कमर्शियल प्रीमाइसेस पे 5% और 10% है, उसका दो इफेक्ट आपको आता है। क्लोजिंग स्टॉक का आपको दोनों इफेक्ट आता है, दैट आई डोंट हैव टू डिस्कस। सो हम लोग सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम लोग क्लोज करेंगे तो दिस विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर 89,700 बैंक का बैलेंसिंग फिगर है जो हम लोगों ने कहां पर डाला, बैलेंस शीट में। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट को क्लोज करेंगे। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 8,50,000, नेट प्रॉफिट 5,25,700, ग्रॉस प्रॉफिट 8,50,000, नेट प्रॉफिट 5,25,700। ये नेट प्रॉफिट तुमको बताया जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा and my balance sheet will tally on 12,25,700. Very good question. I like the question very much because it is simple but it is something new. सिर्फ एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देते जाओ और ध्यान से करते जाओ। 10 मार्क के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये तुम्हारा बैलेंस शीट, दिस इज योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल, and this is your bank account. Summary receipt of AMS Societies for the year ended 31st March 2021 are as follows. इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है एज इट इज। यहां पर क्या किया, इंस्टीट्यूट का जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है
उसका और ये क्वेश्चन में फर्क इतना ही है कि यहां पर इन्होंने एक जीरो से वैल्यू को बढ़ा दिया है। क्या किया है? एक जीरो से वैल्यू को बढ़ा दिया है। एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4b. It is what? It is question number 3. You can find out on page number 9.32. It is similar question. ये question में तुम लोगों को ये सब दिया है, सिर्फ एक चीज इसमें अलग है, that is कि तुमको यहाँ पर ये question में तुमको additional एक चीज बनाने को बोला है, and that they have said that is balance sheet. हाँ, जो मॉड्यूल में उसमें बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला है, बट यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने को बोला है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी दैट यू विल सी दिस इज द न्यू थिंग दैट इन द क्वेश्चन, दैट इज दे हैव गिवन ओपनिंग कैपिटल। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन? या हम लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन में ध्यान रखने जैसा क्या है? ये क्वेश्चन में तुम लोगों को सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देके रखा है, नीचे तुमको चारों चीज दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर, प्रीपेड फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर, सब देके रखा है तुमको। जो इंपॉर्टेंट है, जो नया चीज है तुम लोग के लिए, जो नया चीज है या जो मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन का खासियत है, दैट इज amount due for medicine supply and stock of medicine. Because if you see in this question, receipt and payment account में हमको क्या मिलेगा? पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, दैट इज हाउ मच? 3 लाख रुपीज। मतलब ये पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई पे से और ये जो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई पे से मुझे पता चलेगा कि मेरा परचेजेस कितने रुपए का है। Because this is my 90,000 is opening creditor, 1,30,000 closing creditor, 3 lakh rupees I have paid, so I will come to know how much is the actual medicine that I have purchased. अब वो जो मेरा परचेज है, वो परचेज पे से मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, और मुझको पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल में मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना हुआ है। सो ये तुम्हारे लिए मैंने बना के रखा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन परचेज, वो मटेरियल की जगह पे मेडिसिन परचेज है। सो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऐसा हम लोग को पता चलता है। सो वो कैलकुलेट करके हमको पता चलता है दैट 3,40,000 का मेडिसिन जो है परचेज किया है। फिर मेडिसिन कंज्यूम्ड, medicine consumed, opening plus purchase less closing, you will come to know how much is the medicine consumed. बाकी सब सिंपल है, इसमें कोई भी चीज नया नहीं है, कोई भी चीज नया नहीं है। यहां पर तुम लोग जरा ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में कहीं पर भी तुमको डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह नहीं दिया है, बट तुम्हारा बिल्डिंग पहले 5 लाख था, अभी 480 हुआ, तो 20,000 का क्या है तुम्हारा डेप्री। तो तुम यहां पर बोलोगे सर इक्विपमेंट में क्या हो गया, तो ये 2,10,000 भले ही था, 150 का परचेज भी किया था। सो 2,10,000 प्लस 150, 3,60,000 का क्या हुआ इक्विपमेंट, माइनस 3 लाख इज क्लोजिंग, सो आई कैन से 60,000 का क्या आएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। So this is my income and expenditure account. All other things are simple, honorarium, salary, that you all know, we don't have to discuss so much on that. So तुम्हारा जो surplus है, that surplus will come how much, 1,02,000, and then we have to prepare the balance sheet also. Our balance sheet will tally on 20,42,000. I'm not going into the detail of advance subscription received for the current year because I know you know it very well.
So this is also the simple question that they have asked for. See how many marks? 10 marks. As it is 10 marks का question from institute module. और क्या चाहिए जीवन में? Now we are discussing about question number 5A. Question number 5A is about the subsidiary books. अभी subsidiary books का question number 5 हम लोगों को 5 मार्क के लिए पूछा है. मजे की बात यह है कि अगर तुम लोग ने मॉड्यूल का subsidiary books पढ़ा है तो उसका जो question number 1 जो solved example है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा. उल्टे का जो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ना उसमें 5 एडजस्टमेंट है जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट है. सब्सिडियरी बुक्स जब हम लोग बनाते हैं तो सब्सिडियरी बुक्स में क्या लिखते हैं? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली. क्या लिखते हैं? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली. मतलब सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आना चाहिए, सिर्फ गुड्स परचेज आना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन या क्राइटेरिया फुलफिल होता है वी विल एंटर दैट इनटू द सब्सिडियरी बुक्स मतलब परचेज बुक में. अगर नहीं आएगा तो मैं बोलेगा चलो निकलो. वी हैव टू प्रिपेयर परचेज बुक. तो सबसे पहला दिया है परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी. तो उसका फॉर्मेट आपको मालूम है. हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? रेड एंड कंपनी. उधर क्या लिखेंगे? 10 पेयर ऑफ ब्लैक शूज 800 मतलब 8000 प्लस 900 इंटू 5 4500 मतलब टोटल 8000 प्लस 4500 12500 जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 1250. तो जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी कम इन द अमाउंट कॉलम. सो 12500 माइनस 1250. फिर परचेज द कंप्यूटर फ्रॉम मेजर्स राहुल ऑन क्रेडिट. सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या ये परचेज बुक में आएगा? देखो क्रेडिट है, परचेज बुक में आना चाहिए नहीं क्योंकि ये कंप्यूटर परचेज है. क्या वो गुड्स है मेरा? नहीं. सो दिस विल नॉट कम इन परचेज बुक. This will not come in purchase book. Purchase from Blue and Company in cash. सर देखो मैंने ब्लैक शूज और ब्राउन शूज वापस परचेज किए ब्लू एंड कंपनी के पास. सर गुड्स है, परचेज बुक में आना चाहिए नहीं. क्यों? कैश है ना. बस ये दोनों का हम लोग नीचे नोट लिखेंगे. That purchase of computer cannot be entered into the purchase book because it is not a goods. Or purchase from Blue and Company, it should be recorded in the cash book. The reason why? Because it is a cash transaction, so it has to be entered in the cash book, not in the purchase book. बस इसका 5 मार्क. ये क्वेश्चन का 5 मार्क. 5. एंजॉय. लिटरली बस इतना ही क्वेश्चन है. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग आइदर 1 और 2. अब ये क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर देखा है उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है अगर तुम उसमें देखोगे तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ऐसे का ऐसे विथ अमाउंट विथ डेट सेम है. और एक 5 मार्क्स डिटो इंस्टीट्यूट. रेक्टिफिकेशन आया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, अकाउंट करंट सिमिलर क्वेश्चन है, बट तुम्हारा जो रेक्टिफिकेशन है एनपीओ है. और ये 25 मार्क का तो ऐसे कॉपी पेस्ट किया है मॉड्यूल में से. बाकी सब में थोड़ा बहुत चेंजेस है बट ये तो एज इट इज डिटो के डिटो क्वेश्चंस है. सो ये क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन तुम देखोगे मॉड्यूल में तुमको मिल जाएगा समथिंग अराउंड सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 है. So you will going to find out that same on page number 8.114 you are going to find out the same question. So अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखा है. तो कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा, कितना अमाउंट तुम लोग उसको बैलेंस कैरी डाउन करोगे. तो अगर मैं सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से बात करूँ, फर्स्ट ईयर में प्रीमियम 3000 पे किया, बैलेंस कैरी डाउन नील है तो पूरे का पूरा 3000 कहाँ पर जाएगा? पीएनएल के अंदर. सेकेंड ईयर में 3000 पे किया, सरेंडर वैल्यू 900 है, 2100 जाएगा पीएनएल के अंदर. थर्ड ईयर में 3000 पे किया, सरेंडर वैल्यू कितना है? 2000. तो ओपनिंग 900 था प्लस 3000, 3900 माइनस 2000 तो कुछ 1900 रुपीज जाएगा तुम्हारा पीएनएल के अंदर. एंड सो ऑन.
5 मार्क एज इट इज। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 8 तुम देखोगे सॉल्व एग्जाम्पल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो कि वेदर यू हैव डन करेक्ट और नॉट। अब PQR लिमिटेड ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें से हमको क्या पूछा है, वेदर यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू प्रोविजन रिजर्व या फिर नाइदर प्रोविजन नॉर रिजर्व। जैसे कि लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, तो भाई ये मेरा प्रोविजन है, लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स ये क्या है मेरा प्रोविजन। रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट में किधर ट्रांसफर करेगा, रिजर्व में। रिटेन प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा, रिजर्व में। जनरल रिजर्व्स वगैरह में हम लोग लिखते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन प्रॉफिट जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हमारा ना ही प्रोविजन है ना ही रिटेन्ड है, ये सिर्फ हमने प्रपोज किया कि हम इतना डिविडेंड देंगे, सो ये नहीं प्रोविजन भी नहीं है और ये हमारा रिजर्व भी नहीं है। इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाम ही बोलता है भाई इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रोविजन। एंड लास्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ना ही मेरा प्रोविजन है ना ही रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा, सो ये क्या आएगा, नाइदर। तो दिस विल बी सी, दिस विल बी सी, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5C, गुड क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन में पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ रिलेटेड कुछ था ही नहीं। उन्होंने क्या बोला, एक पार्टनर का डेथ हो गया और उसका अमाउंट जो भी है हम लोग उसके लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक पार्टनर का क्या हो गया, डेथ, उसका अमाउंट कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, लीगल एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, और वो लीगल एग्जीक्यूटर को जितना भी अमाउंट है हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat in the event of death of a partner, the survivor who have to purchase his shares in the firm on the following terms. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of simple average. Profit of last 4 completed years. ठीक है, 3 साल का हम लोगों को क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 4 साल का क्या है कंप्लीटेड ईयर। Outstanding amount due to representative as a deceased partner shall be paid in 4 equal half yearly installment commencing 6 months after the death plus 5% interest। मतलब तुम्हारा अगर सपोज 1 लाख रुपया निकलता है तो हर साल 25 25 25 25 प्रिंसिपल हो गया, और वो 25,000 पे हर साल का जो भी इंटरेस्ट होता है वो अब 6 महीने पे देने का है। 5% पर एनम है तो 5% पर एनम इंटू 6/12 करना पड़ेगा हर टाइम पे, कॉमन सेंस। They shared a profit and losses in the ratio of 9:4:3. Ram died on 30th September 2020 and the partner's capital account balance on that date, Ram 21,600, Lakshman 12,800 and Bharat 7,200। एकदम भाव भक्ति वाला घर वाला क्वेश्चन है। Ram's current account after crediting the share, बच्चे लोग का गलती कहां पर होगा ना, वो ये चीज पे, however showed a डेबिट बैलेंस ऑफ 1920, मतलब राम का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। फर्म का 4 साल का प्रॉफिट ये क्यों दिया है सर, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। शो राम्स कैपिटल अकाउंट एंड द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ राम टिल फुल पेमेंट इज मेड। तो सबसे पहले तो गुडविल फाइंड आउट करते हैं भाई, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करने का है, तो मैं क्या बोलेगा, जो भी पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है दैट विल बी समथिंग अराउंड 1,44,216। बट ये 1,44,216 किसका गुडविल है, पार्टनरशिप फर्म का। राम का कितना शेयर है, राम का शेयर है सर 9/16, तो राम को कितना मिलेगा 81,122। फर्स्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू राम। देखो पूरा क्वेश्चन में ना ही रिवैल्यूएशन है, कोई मगजमारी नहीं है रिवैल्यूएशन का, है नहीं। है नहीं, क्या दिया है उन्होंने, फिर उन्होंने हमको दे के रखा है यहां पर दैट राम का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कितना था 21,600 प्लस उसको क्या मिलेगा गुडविल, और दूसरा उसका डेबिट बैलेंस कितना है 1920। तो भाई राम का कैपिटल अकाउंट रेडी
एग्जीक्यूटर को कितना पे करेंगे, 1,08,2 रुपीज, दैट्स इट, इतना ही पे करने का, खत्म, राम का लेजर अकाउंट तैयार। 10 मार्क का क्वेश्चन में से 3 मार्क मिल गए तुमको। अब ये 1,08,2 रुपीज 30 सितंबर से हम लोग क्या करने वाले, पे करने वाले हैं, बट 6 महीने के इंटरवल में पे करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालेगा कि राम के अकाउंट से कितना आया, 1,08,2। उसके ऊपर हम लोग क्या देने वाले हैं उसको, इंटरेस्ट। कब देंगे, 6 महीने के बाद। तो 1,08,2 पूरा अमाउंट बाकी था, तो 1,08,2 पे 5%, बट फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा, 2,520। अब प्रिंसिपल कितना पे करने का, तो उन्होंने बोला सर कुछ 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने का ना, वो भी इक्वल। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ईच एंड एवरी टाइम इज हाउ मच, 25,201, 25,201. Now when we are saying that 25,201 प्लस ये जो इंटरेस्ट, तो पेमेंट कितना करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 27,721, 31 मार्च इज द ईयर एंड। तो हमने क्या निकाला, बैलेंस। ये बैलेंस यहां पर क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। अब 31 मार्च के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, 75,601। तो इंटरेस्ट भी कितने पे लगेगा, 75,601 पे 5%, बट फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा, 1,890। अब 30 सितंबर को मैं पे करेगा तो कितना पे करेगा सर, 25,201 प्लस 1,890। तो मैं कितना पे किया, 27,090। तुम बोलोगे सर अभी पे किया, अभी बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं निकालेंगे। क्यों बैलेंस कैरिड डाउन नहीं निकालेंगे, द रीजन इज बिकॉज ईयर एंड तो 31 मार्च को होता है, ये 30 सितंबर को है, मतलब 6 महीना गाड़ी और चलेगा। 6 महीना गाड़ी चलने के बाद कितना अमाउंट बाकी है प्रिंसिपल, 50,402। ये 50,402 पे कितना, 5%, कितना महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना आएगा, 1260। कोई बोलेगा 50,402 कैसे आया, तो मैं बोलेगा 25,201 का 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। सो 25,201 का 2 इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 50,402, सिंपल। तो 25,201 प्लस 1260 जो इंटरेस्ट है वो पे किया, बैलेंस 25,200, 6 महीने का इंटरेस्ट 630 एंड टोटल फाइनल पेमेंट किया 25,830। जैसे ही फाइनल पेमेंट किया 25,830, हमारा क्वेश्चन यहीं पर क्या हो गया, समाप्त। सो दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। यू कैन सी दैट कि ऐसा कुछ हमको लेजर अकाउंट बनाने का है, राम का लीगल हायर अकाउंट बनाने का है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी सॉल्व एग्जाम्पल में तुमको मिलेगा, बट कैसा है ना कि ये क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर कभी कोई बच्चे लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो इंस्टीट्यूट ने बोला चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में डाल दिया। नाइस क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अगर तुम करोगे तो तुम्हारा 4 क्वेश्चन यहीं पर हो गया। यू कैन इजीली एबल टू राइट 100 मार्क्स का पेपर। बट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स एट इश्यू ऑफ शेयर्स एट, हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है, फोर फीचर हुआ है, री इश्यू हुआ है, सब कुछ हुआ है। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन, सब कुछ हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखते क्या है। X Limited invited an application for issuing 75,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share। 75,000 शेयर्स क्या किया है, सब्सक्रिप्शन देने के लिए, या एप्लीकेशन हम लोगों ने बोला है कि 75,000 ही शेयर्स हम लोग इश्यू करने वाले हैं। एप्लीकेशन दिया है 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में, 5 रुपया प्रीमियम के साथ।
₹9 जो भी है तुमको अभी का अभी देने का एप्लीकेशन में, और बचा हुआ ₹6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन हमको मिला 3 लाख का, 3 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन मिला। जोरदार आईपीओ खुला है इनका। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी वाज रिफंडेड। 2 लाख का एप्लीकेशन का पैसा वापस भी दे दिया, मतलब रखा कितना 1 लाख। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट 1 लाख पे हुआ। 1 लाख तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स है, तो एप्लीकेशन कितना मिला था, इक्विटी शेयर कितना मिला 75,000। Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicant. The first and final call was made. The amount was duly received except on 1500 shares applied by Mr. Raj. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at a discount of 4 per share. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of X Limited. Journal entry को साइड पे रखते हैं, पहले forfeiture वाले का चीज देखते हैं। सबसे पहले कितना शेयर एप्लीकेशन किया था, 3 लाख। उसमें से 2 लाख को तो हमने रिफंड कर दिया, मतलब कितने लाख का शेयर रखा 1 लाख। तो मैं क्या बोलता हूं, टोटल एप्लीकेशन 1 लाख, अलॉट कितना किया 75,000। अब राज ने कितना अप्लाई किया था 1500, तो उसको कितना अलॉट किया रहेगा 1125। हाउ मच वी हैव अलॉटेड 1125 शेयर्स। हाँ सर 1125 दिया। अब उसने जब एप्लीकेशन मनी दिया तो कितने रुपए पे दिया, कितना शेयर्स पे दिया 1500 पे। 1500 पे कितना 1500 इंटू 9, कितना दिया 1500 इंटू 9। बट उसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ तो इक्विटी शेयर में डाल दिया, कुछ हमको क्या मिला रहेगा एडवांस। तो 1500 शेयर्स का एप्लीकेशन किया था और 1125 अलॉट किया, मतलब मैं बोल सकता हूं 375 शेयर्स पे ₹9 एक्स्ट्रा दिया था। तो कितना एक्स्ट्रा दिया उसने 3375, जो मैं फाइनल कॉल में एडजस्ट करेगा। सो आई एम गोइंग टू एडजस्ट 3375 इन द फाइनल कॉल। तुम बोलेगा बराबर, बोलेगा यस 3375 विल बी एडजस्टेड इन द फाइनल कॉल। सर फाइनल कॉल एक्चुअली किया कितने रुपए का था, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम राज ऑन फाइनल कॉल 1125 into 6, that is 6750। उसमें से ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा उसने देके रखा था, हाउ मच एक्स्ट्रा ही हैज गिवन 3375। कितना एक्स्ट्रा दिया था उसने 3375। तो कॉल इन अरियर कितना आएगा, कॉल इन अरियर इज ओनली 3375 रुपीज। किसी को अगर कोई भी डाउट रहेगा कॉल इन अरियर का, तो देखो कैसे आया कॉल इन अरियर कि यार उसका फाइनल कॉल पे तो हम लोग को कितना लेना था 6750, जिसमें से हमको एडजस्ट कितना करना है 3375। तो फिर कॉल इन अरियर में कितना जाएगा 3375 रुपीज ही जाएगा तुम्हारा कॉल इन अरियर में। अब ये क्यों, बिकॉज ये मेरे को एंट्री पास करने को काम आएगा ना। अभी एंट्री देख लेते हैं सर। अभी एंट्री में क्या है, सबसे पहले तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो मैं क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 9, 27 लाख रुपया रिसीव किया। उसमें से 2 लाख को ऐसा वापस रिफंड कर दिया। 1 लाख का शेयर में से 75 इक्विटी दिया और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करने वाला हूं। तो मैं क्या लिखेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 25,000 शेयर्स पे ₹9 जो एक्स्ट्रा मिला है वो मैं एडजस्ट करेगा फाइनल कॉल में। सो जरा एंट्री देखो, 2 लाख रिफंड किया इंटू 9 18,000, 75,000 इंटू 4 इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला, बाकी का 3,75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जब मैंने ड्यू किया तो 4,50,000 लेने का था, जिसमें से 3375 हमने कैलकुलेट किया, कॉल्स इन अरियर्स में गया।
सो 2,25,000 में से 221,625 रिसीव हुआ, बाकी का 3,375 अरियर्स में गया। फुल्ली कॉल्ड अप था, तो जब मैं फोरफिट करने को बैठेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी है वो मिल गया था, तो वो तुम्हारा डेबिट होने वाला ही नहीं है। तो क्या डेबिट होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1125 इंटू 10 11,250। फोर फीचर में तुम्हारा कॉल इन अरियर में कितना गया? 3,375। तो बाकी का सब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा तुम्हारा? 7875। बैलेंसिंग फिगर 7875। आपने जो शेयर्स था वो उसको क्या कर दिया? री इश्यू। बट री इश्यू के लिए क्या बोला है? री इश्यू के लिए क्या बोला है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 4, मतलब 6 रुपए में री इश्यू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1125 इंटू 6, शेयर फॉरफीचर 1125 इंटू 4, जितना भी तुमने डिस्काउंट दिया शेयर फॉरफीचर से जाएगा, बाकी का किधर जाएगा? 11,250। और फिर तुम्हारा शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, देखो कितना था शेयर फॉरफीचर में? 7875, जिसमें से ये तुमने क्या कर दिया? शेयर्स इश्यू करने के लिए यूज कर दिया। तो बचा हुआ किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 3,375। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,375। दिस इज योर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर 15 मार्क। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हो सकता रहेगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे था तो, बट इट्स योर चॉइस, इट इज कंप्लीटली सिंपल क्वेश्चन। एंड लास्ट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो यार ये थियरी क्वेश्चन है, सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस वगैरह क्या है, तो वो मॉड्यूल में आगे दिया है। दैट इट विल सेव योर टाइम, रिपीटेशन ऑफ वर्क्स अवॉइड हो जाएगा। सब्सिडरी बुक्स बनाए तो डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट एंड ऑल दिस। So overall I can say that it is highly manageable paper asked by the CA Institute. So if you have given attempt in this particular, you can say that कि अगर आपने मॉड्यूल RTP या फिर मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट का मटेरियल को अच्छे से किया हुआ है, so you are easily going to score minimum 50 to 60 marks in this particular paper. I don't have any doubt in that. So once again I am going to say, the students which are going to appear in the future examination, please do the institute module properly, RTP and MTP properly. The module, the base, the syllabus which is, or I can say the study material which is given by the ICI, that is the most important thing that you have to do, because सब उसमें से ही पूछा हुआ है. So I hope you have enjoyed this video. I hope you learned something new, or I can say that the paper solution is useful for you. So please do like, comment and subscribe to our channel. So we will provide you further information and we will give you further notes on any other subjects, or I can say any other topics, whichever your requirement. If you have any queries, please post it on comment. We will answer to you on that particular part also.